So last 30 days में revision has to be given a higher priority as compared to solving a mock test. ठीक है? So this is the broad outline. Hi dreamers, this is Dipanshu Singh, your faculty on the Prep Ladder platform, and today I'm here to discuss on one of the most debated and one of the most looked forward video, or rather strategy session, where students always keep on asking that what should be the ideal strategy for last 1 month or 30 days for UPSC prelims preparation. So now you have done it all, you have covered the syllabus, you have studied properly, you have given it to your all in the last 1.5 years of your preparation. Now is the time to shift the gears to another level. You have to peak now, and what should be the ideal strategy, what has to be done in the last 30 days. I'll be taking you through on all of that in this video. So do watch the video till the end to understand the nuances कि कैसे करना है prepare लास्ट के 30 दिनों में, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स को कवर करना है और फोकस क्या होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन question or a problem or a dilemma that the learners face is whether to continue solving test papers or whether to revise more. So I'll be talking about that and other things in this video. So let's get started. So first thing is that एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम कब है. A lot of people still at the last moment they do not know कि एग्जाम किस दिन है, कंफ्यूजन है, 9th को है 10th को है. तो इसके लिए पहले तो अपना ज़रा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, जैसे भी आ जाता है. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके 2-3 कॉपी निकाल के ना अपनी रख लीजिए. जस्ट कीप इट समवेयर प्रॉपरली सेफ, 2-3 एडमिट कार्ड कॉपीज एंड सी टू दैट इट्स लाइक क्लियर एडमिट कार्ड, प्रॉपरली प्रिंट हुआ है, उसमें कुछ मिसप्रिंट नहीं है, नहीं तो बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में इशू होता है. स्पेशली क्योंकि आपको मास्क पहनना पड़ेगा कोविड में और आपको अपना ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैरी अ कॉपी ऑफ योर ID कार्ड विथ ओरिजिनल अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड. These are trivial issues, but they can make an impact on the examination day. जबरदस्ती में उस दिन फालतू में टेंशन हो सकती है, तो why to add unnecessary stress? So having said that, let's say कि right now approximately you have, in fact it's less than 30 days. So what should be the ideal strategy? So we can, let's say, divide this into 4 weeks. Week 1, week 2, week 3 and week 4. Right? So I'll be talking about how to cover which subjects and what should be the idea. See, first thing that I always recommend to everybody is revision should always trump or is of more priority than solving test paper right now. Of course, you can keep on solving a test paper. I think you can keep on solving test paper till 2nd October. उसके बाद you need to stop it and you need to revise as much as you can. जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे उतना आपके काम आएगा. रिविजन इज द की. 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, जितनी बार करोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना बेटर सिनैप्स बनेगा ब्रेन में, उतना बेटर कनेक्शन होगा. सो इफ देयर इज अ डायलेमा ऑन वेदर टू चूज टू रिवाइज और वेदर टू सॉल्व अ टेस्ट पेपर, अगर अभी तक आपने टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं, वेल एंड गुड. आइडियली यू शुड हैव सॉल्व्ड अराउंड 30. नहीं किया, कोई बात नहीं, अब टेस्ट पेपर के पीछे मत जाओ. The reason why I'm saying why you don't need to solve test paper now is, suppose you solve, let's say, a random ABC test paper और आपकी preparation ठीक ठाक थी and that test paper was difficult. तो अभी अगर आपके less marks आ गए, you will now get into a stress. ठीक है, स्ट्रेस हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है. देन यू विल थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स कि मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, एंड आई विल ड्रॉप दिस अटेम्प्ट एंड आई विल प्रिपेयर अगेन प्रॉपर्ली नेक्स्ट ईयर में दूंगा. तो ऐसा नहीं करना है. ठीक है, ये हर साल होता है. एवरी लर्नर गोज थ्रू दिस, एवरी एस्पिरेंट हैज फेस्ड दिस. जस्ट अ वीक बिफोर दे हैव दीज कोल्ड फीट दैट इस बार शायद प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, लास्ट टाइम जो है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, इस बार जाने देते हैं, नहीं तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा. सो आई वुड से आइडली यू शुड स्टॉप प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट एटलीस्ट 10 days, नहीं 10 days तो एटलीस्ट 7 days बिफोर, और उसके बाद सिर्फ आपको रिविजन पे ही ज्यादा फोकस करना है. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट दीज 4 weeks कि कैसे कैसे आपको फोकस करना है. सो आइडियली द टाइम टेबल शुड बी कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यू नीड टू क्लॉक अराउंड एटलीस्ट 10 to 12 hours.
10 से 12 घंटे तो देखो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस का टाइम है। एंड वाइल यू व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एंड वंस यू आर सॉल्विंग द पेपर, दोस 2 आवर्स आर वेरी क्रूशियल। उस समय आपका ब्रेन बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा हो। तो वीक के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पहले तो उनको रिवाइज करिए, उन सब्जेक्ट्स को जो आपके रह गए हों, जो लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स रह गए थे। जैसे कुछ लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री रह गया होगा या किसी का आर्ट एंड कल्चर रह गया होगा। सो वीक 1 में ट्राई एंड कवर ऑल ऑफ दो सब्जेक्ट्स 5-6 डेज में, जितना आप जिसको आपने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया। देन वीक 2 में यू कैन कवर अदर सब्जेक्ट्स जिसको आपने एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज किया है, लाइक 1 या 2 राउंड्स ऑफ रिविजन यू हैव डन ऑफ दैट सब्जेक्ट। जनरली द सब्जेक्ट्स इन दिस आर पॉलिटी, इकोनॉमी, योर एंशियंट हिस्ट्री भी हो सकता है, कुछ लोगों ने पढ़ लिया हो, या ज्योग्राफी। वीक 3 में यू कैन फोकस ऑन दो सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, प्रॉबेबली यू हैव रिवाइज 3 टाइम्स बिफोर। एंड देन वीक 4 लास्ट इज देन यू रिवाइज जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ्स को भी इग्नोर नहीं करना है, स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना है। सो फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स जो आपने अच्छे से रिवाइज किया है। प्लस आई वुड से लास्ट वीक हैज टू बी स्पेसिफिकली गिवन टू द मिस्टेक्स यू हैव मेड इन योर टेस्ट सीरीज। जो आपने टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स करी थी ना सर, उसको देख लेना एक बार। ट्रस्ट मी, 10-15 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके। तो अभी तक आपने, इफ यू हैव नॉट मेड अ नोटबुक उसको रिवाइज करने के लिए, तो कोई बात नहीं, कुछ पुराने टेस्ट पेपर उठाइए, एटलीस्ट 8-10 जो आपने करे थे, उसमें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ट्राई एंड पिक दोज अप and go through the questions that you have got it wrong and see their options and also see their explanation, because they will give you such extra information that might just land up in the examination paper. बहुत काम आता है ये। मेरे पास एक डायरी होती थी of all of these mistakes and I used to write down the extra information that I had. Trust me, it worked wonders. I was one of the highest scores in prelims examination जब भी मैंने ये चीज फॉलो करी। So 4th वीक में ये काम बहुत अच्छे से करेगा, राइट? रिवाइज योर टेस्ट पेपर्स। एंड 3rd वीक में आपको, 2nd और 3rd वीक में एक और जो काम करना है कि आपका जो करंट अफेयर्स छूट गया है, उस करंट अफेयर्स को भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। सो लास्ट 30 डेज में रिविजन हैज टू बी गिवन अ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट। ठीक है? सो दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन। Now let's talk about what should be the ideal schedule for it. डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है लर्नर्स का कि सर शेड्यूल क्या होगा इसका। तो डेली शेड्यूल देखते हैं एक बार क्या होगा। लेट्स से इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आपने क्या करा कि यू गेट अप एट 8, सो 8 to 10 आपने क्या किया, करंट इश्यूज रिवाइज कर लिए। वाई एम सेइंग करंट इश्यूज या करंट अफेयर्स रिकैप, क्योंकि सुबह माइंड आपका फ्रेश होता है और करंट इश्यूज क्या होते हैं, थोड़े फैक्चुअल होते हैं, और ये आपको जनरली एट द एंड ऑफ द डे उतने ज्यादा अच्छे से याद नहीं रहेंगे। आप मॉर्निंग में कल रहोगे, बेटर है, बिकॉज यू हैव अ फ्रेश माइंड। देन यू कैन टेक अ गैप फॉर लेट्स से हाफ एन आवर, हैव योर ब्रेकफास्ट, देन probably you can start again from 10:30. You can do a sitting of 2:30 p.m. तक। आफ्टरनून में यू कैन रिवाइज एनी जीएस सब्जेक्ट। ठीक है? कोई जीएस का पेपर आपको हो सकता है, मान लो आपको पॉलिटी रिवाइज करना था, आपने पॉलिटी रिवाइज कर ली। ठीक है? दैट्स द सेकेंड थिंग। तो आपने 2 घंटे यहां लगाए, 2 घंटे यहां लगाए, 4 hours are done. Now you take a rest, probably have your lunch, then after lunch you can take a little bit of rest, and उसके बाद you can start another sitting. Probably what you can do is you can start at around let's say 2 p.m. to 4 p.m. 2 p.m. to 4 p.m. you can pick up another subject. Let's say पॉलिटी के साथ आपने कर लिया गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है? यू कैन डू गवर्नमेंट स्कीम्स, तो 2 घंटे आपने यहां लगा। नाउ 4 to 5 आई जनरली सजेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट इज कि थोड़ा शाम को या 4 बजे अगर आपको लगता है कि थकान हो रही है, बिकॉज जनरली आफ्टरनून में यू फील लाइक टेकिंग अ नैप, सो डोंट टेक अ नैप। व्हाई? बिकॉज आपका सीसैट पेपर इस समय हो रहा होगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नैप, ट्राई एंड कीप योर माइंड अलर्ट टिल 4:30। 4:30 के बाद आप क्या कर सकते हो, 4:30 to 5:30 probably you can have your cup of coffee or a tea and you can talk to your parents. It's basically your relaxed time. ठीक है? थोड़ा रिलैक्स करो यहाँ पे, अभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 p.m. से यू कैन स्टार्ट अगेन। 6 to 8 आई वुड से स्टार्ट अगेन विद अ जीएस सब्जेक्ट। ठीक है? आपने जीएस सब्जेक्ट जो एक यहाँ पे था, पॉलिटी अगर बच रहा है आपका तो फिर से पॉलिटी उठा लीजिए। दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कर सकते हो तब अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड इफ यू आर एट अ स्टेज कि आपको
नंबर इन द टेस्ट पेपर आर 120 130 जनरली आपके आ रहे हैं. सो 6 to 8 दोबारा आपने जीएस रिवाइज किया, जो पॉलिटी का जो भी आपको रिवाइज करना था, जो भी आपका टारगेट है. देन यू टुक अ ब्रेक फॉर डिनर करके फिर आप 9 से 11 एक काम करो. आइदर यू कैन डू सीसैट और यू कैन रिवाइज योर टेस्ट पेपर्स या मॉक पेपर. तो अपने 2 घंटे हम यहां बैठे, 2 यहां पे बैठे, 2 यहां बैठे और 2 यहां बैठे. कितने हो गए हमारे? 2 2 4 6 8 10 10 आवर्स. दिस इज द आइडियल शेड्यूल. अब इसको आप +1 +2 भी कर सकते हो. जिस दिन आपको लगे आप ज्यादा एफर्ट कर सकते हो. 11 से 12 अगर आपको लगे कि आपको 12 बजे सोना है, यू हैव टू टेक एटलीस्ट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 8 घंटे प्लीज सो लेना. नहीं सोओगे तो एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो एटलीस्ट स्लीप टिल 12 AM इन द नाइट टू 8 in the morning. और अगर 12 से कर रहे हो तो 7 बजे भी 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है. तो 11 से 12 जो आपके पास ये टाइम बच रहा है, आइदर यू कैन रिवाइज समथिंग जो आपको लगे कि छूट गया है, और व्हाट यू कैन डू इज समटाइम्स लेट्स से कि अगर आपको लगता है देयर आर 2 केसेस नाउ. आइदर यू कैन रिवाइज, वन टाइप ऑफ कैंडिडेट विल रिवाइज सम सब्जेक्ट जो लगता है उसे कि शायद मिस हो गया या मैं भूल रहा हूं या भूल रही हूं. अनदर कैंडिडेट हु हैज सॉल्व्ड लेस क्वेश्चंस, लेस मॉक पेपर, दे कैन यूटिलाइज दिस रात का 11 से 12 का टाइम. It's not necessary to solve all 100 questions. Solve 20, solve 30, at least related to your subject, या randomly कर लो पेपर. ये भी आप कर सकते हैं. एंड इस तरीके से आप करोगे तो ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो इन द लास्ट 1 month. इतना चाहिए. अगर आप और एफर्ट कर सकते हो तो यू कैन स्ट्रेच इट टू 13-14, बट आई वुड हाईली नॉट रिकमेंड इट. Ideal is around 12, not more than that, because then you are either compromising on your sleep. हाँ, आप अपना रेस्ट टाइम थोड़ा curtail कर सकते हो. You can limit it as going forward. ठीक है, उसको आप थोड़ा लिमिट कर सकते हैं. That's what can be done. But this is the sample schedule what has to be done. और ये बहुत easily मैनेज हो जाएगा. इसमें आप चाहो तो एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि let's say if you want to focus on one particular subject on one day, I would say you can give that subject more, probably you can give 5 hours and you can give the other subject let's say 2 or 3 hours only. ये भी कर सकते हो आप. बट दिन भर में आप देखोगे 2 घंटे तो करंट अफेयर्स को आपको देने ही देने हैं, बिकॉज करंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड रेस्ट ऑफ कोर्स इज कॉम्प्लीमेंटेड विद जीएस सब्जेक्ट्स. तो ये आपको करना पड़ेगा. दिस इज द approach that I would highly recommend, has worked wonders for me, worked wonders for a lot of aspirants. Last but not the least, there are few things that you keep into mind. ठीक है, you have to keep in your mind is कि कुछ गलतियां नहीं करनी है. जैसे मैंने बताया, सोना है अच्छे से. ठीक है, 8 घंटे 8 hours, एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ मिनिमम स्लीप बहुत जरूरी है. ट्रस्ट में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा एग्जाम में. वो बिल्कुल नहीं करना है, साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाएगी. Secondly, as I told you again, revision is the key. Revise as much as you can as compared to giving your test. जिन लोग का CSAT कमजोर है वो CSAT की प्रैक्टिस कर सकते हैं. They can give last 1 month में at least 1 to 2 hours daily. And I would say इसमें you prefer more reading comprehension, your reasoning, क्योंकि इसके सवाल बहुत easily solve हो सकते हैं. And quantitative ability में just pick out a few topics like percentages, LCM, HCM, profit loss, इसमें से काफी सवाल आते हैं. Fourthly, try and maintain your calm. ये last 1 month में बहुत जरूरी है. Try and maintain your calm. How do you do that? Avoid negative people in life. ठीक है, उनको अपने से दूर रखिए. जैसे मैं अभी इरेज कर रहा हूं ना, ये ऐसे इरेज करना है उनको. एटलीस्ट अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो एग्जाम तक कर दीजिए. अवॉइड नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ. कीप योर सोशल इंटरेक्शन जो है मिनिमम रखने हैं आपको. और आई वुड हाईली रेकमेंड नॉट टू पिक अप एनी न्यू बुक. कोई बोलेगा अरे वो मार्केट में नई बुक आई है, अरे ये बुक आई है. सर कोई फायदा नहीं है. पढ़ भी लोगे, लेट्स से आप पढ़ भी लेते हो, उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे. सो आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू पिक एनी न्यू बुक. हाँ,
अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, आई कैन से दैट यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर। एक क्विक रीडिंग ले ली या न्यूज़पेपर का कोई वीडियो एनालिसिस देख लिया बहुत क्विकली फास्ट फॉरवर्ड करके, बिकॉज दैट माइट जस्ट हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। क्या पता एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्योंकि वो न्यूज़ माइट जस्ट लैंड अप इन द न्यूज़ इन द पेपर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, रिवाइज करते रहिए एंड कीप योर फूड हैबिट्स ऑल्सो चेक्ड। फूड हैबिट्स को मॉनिटर करिए, फूड हैबिट्स को चेक करिए अपने। अवॉइड ऑयली फूड्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, बट इट दे मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जैसे आजकल वेदर में क्या है, डेंगू है फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, सो कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस। बाहर थोड़ा जाना कम करिए, ठीक है, बाहर कम जाइए, इलनेस से अपने आप को थोड़ा दूर रखिए, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। वो जो बॉडी स्प्रे आते हैं उसको आप लगा लीजिए, ओडोमॉस से जो भी आता है, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। प्रेफरेबली वेयर फुल स्लीव्स। आप देख रहे हो मैंने फुल स्लीव्स पहना हुआ है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है। सो प्रिपेयर फुल, वेयर फुल स्लीव्स, दैट्स रियली गोना हेल्प यू एंड कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। पूरे साल भर की मेहनत वेस्ट हो सकती है इफ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम द इंटायर प्रेप लैडर टीम। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, कीप योर फेथ, have a little faith in your abilities, have full confidence in your preparation. Trust me, it will do wonders. Have a little bit faith in God as well. Seek blessings of your parents, and I'm sure you will do all well. So I hope this video was useful. In case of any doubts and queries, you can reach out to the Prep Ladder platform on Facebook. एक group है, वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं. You can also mention any doubts in the comment section below, which I'll be happy to answer. ठीक है? Thank you so much. So I'll be seeing you guys in the Prep Ladder courses. Download the Prep Ladder app now and you can use my invite code, which is mentioned I think somewhere over here. ठीक है, तो वो डाउनलोड करके वो इनवाइट कोड यूज करिए and you can get amazing courses by amazing faculty on Prep Ladder platform. Thank you. Wishing you all the best. Bye bye.